فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दादे चार यारम ताबे औलादे अलीम मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा हमदो सना के बाद मर्ज़ सामीन कराम ज़वील इख्तिशाम बुजुर्गों दोस्तों मोहतरम भाइयों और बहनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ कि आज हम ईद उल फित्र के दिन रब ताला का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हुए हैं। अब क्योंकि इंतजामिया के दार मामलात हैं उनको बोलना पड़ता है, बाकी सारे इंशाल्लाह तवज्जो रखेंगे क्योंकि आपकी तवज्जो रहेगी तो मुझे भी बोलने का मजा आएगा। तो अगर मैंने हवाई फायरी करने हैं तो बंदा कहीं से भी कर सकता है, तो आप सामने बैठे हैं इंशाल्लाह आपने तवज्जो रखनी है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रब ताला फरमाता है वलितुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। रब ताला फरमाता है कि रोजों की गिनती पूरी करो, अल्लाह की बड़ाई बोलो कि उसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई है। In simple words, the meaning of this hadith, the meaning of this verse of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that after the completion of the month of Ramadan, you should thank to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the time to say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. और ये बात ज़हन में रखिए कि आज का दिन वो है, today is a day, inshallah ta'ala, when Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you reward of Ramadan. और फिर जो गुज़श्ता रात थी जिसको आप चांद रात कहते हैं, हदीस में आता है Prophet ﷺ said regarding चांद रात or the night which was the first night of Shawwal al-Mukarram, Hazur ﷺ ने फरमाया there are two times when Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you the reward of Ramadan. One of them is the night of first Shawwal, जिसे आप चांद रात कहते हैं, and the second one is the day of Eid al-Fitr. तो आज का वो दिन है कि जब आपको मजदूरी मिलनी है. This is a time when Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you reward of Ramadan al-Mubarak. Allah ta'ala हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड लेने की तौफीक अता फरमाए। और साहिबो, आपके सामने चंद हदीस रखता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर रब ने कितना करम फरमाया है। Now listen this hadith. This hadith is mentioned in book Sunan Bayhaqi and the second book name is Mishkat Sharif. हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब देखें कि अल्लाह ताला भी हजूर की उम्मत पर फख्र फरमा रहा है। हजूर ने फरमाया कि आज के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। Allah subhanahu wa ta'ala say proudly to the angels, oh angels, you said to me, this is the part of Quran, when Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to them that I'm going to give my Khalifa, inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala said to the angels before the birth of Hazrat Adam
Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to them that I'm going to give a nation. I'm going to make a nation and create a nation. I'm going to create Hazrat Adam alayhi salam. Now listen the answer of Farishte. तो फरिश्तों ने आगे से क्या क़ालू वतजअलु फ़ीहा मन यफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ए बारी ताला तू ऐसी कौम को बनाने लगा है, ऐसी मखलूक को बनाने लगा है जो जाकर फसाद करेंगे। When Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to the malaika, O malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, I'm going to make my khalifa in this dunya, my nabi in this dunya, means Hazrat Adam. The answer of malaika was, Allah subhanahu wa ta'ala, you're going to create such makhluk, when they will go on earth, they will create trouble, they will kill each other, they will make fasad, they will create problems and troubles in this dunya. Allah Ta'ala आज के दिन फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों तुमने मुझे कहा था ना कि मेरा आदम फसाद करेगा। अब देखो ईद वाले दिन मेरे जो आदम के बच्चे हैं, जो आदम के बेटे हैं, वो अच्छे अच्छे लिबास पहनकर मेरा शुक्र अदा करने आ गए हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने प्राउड फरमाता है, फरिश्तों के सामने जो है वो फख्र, आप कह रहे हैं फख्र फरमाता है। और फिर साहिब अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों से, जब फरिश्ते मान जाते हैं ना, और फरिश्ते कहते हैं बारी ताला हाँ तूने बिल्कुल सच कहा था, तू ये कहता था कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। आज मखलूक वाकई ईद वाले दिन तेरा शुक्र अदा कर रही है। फिर अब ताला फरमाता है, हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमलहु। रब ताला फरमाता है, ओ माय मलाइका कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर माय मखलूक, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे मखलूक का रिवॉर्ड क्या है। तो फरिश्ते आगे से अर्ज करते हैं कि इनका रिवॉर्ड ये है कि इनको बेहतरीन मजदूरी दी जाए, इनको बेहतरीन मजदूरी दी जाए। जब रब ताला फरिश्तों से सुनता है ना, फरिश्ते कहते हैं बारी ताला इनका रिवॉर्ड ये बनता है इनको बेहतरीन मजदूरी दे दो। रब ताला फरमाता है मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, मुझे अपनी चादर ततहीर, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम। रब ताला फरमाता है कि तुम गवाह हो जाओ, मैंने इनको रिवॉर्ड ये दिया है कि मैंने इनकी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह। When Allah subhanahu wa ta'ala asks to them which type of reward I should give to them, angels they say Allah subhanahu wa ta'ala give them really good reward. Then Allah subhanahu wa ta'ala say, okay my angels, you are witness, the reward which I am going to makhluk, the reward which I am going to the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I forgive them. मैं उनको बख्श देता हूँ। तो अल्लाह ताला ने आज हमारी बख्शिश फरमानी है। Today is a great day when inshallah ta'ala we are going to get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And what will be the reward in simple words? Reward will be the bakshish. Reward will be the maghfirat from Allah subhanahu wa ta'ala. Now, very beautiful formula inshallah I'm going to mention. If any one of you will do this amal, he will get this reward. Now listen, very beautiful riwayat. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह everyone can do this। आप जरा मोहब्बत से सुनिएगा और इसको कोशिश करें, try to do this today इंशाल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ईद के दिन 300 मरतबा पढ़े सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही, Prophet ﷺ said, if any one of you will recite 300 times Subhanallah wa bihamdihi today's day, as the day of, on the day of Eid al-Fitr, और फिर दुआ करे जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों में 1000 नूर दाखिल फरमाता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। Very beautiful riwayat. The Prophet ﷺ is saying, if you will recite Subhanallah wa bihamdihi just 300 times today, Allah subhanahu wa ta'ala will enter 1000 anwarat in the qubur of marhumin. And the other thing is really beautiful. फिर हजूर ने फरमाया कि जो बंदा पढ़ता है जिस दिन वो दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला उसकी कब्र में भी 1000 नूर दाखिल फरमाएगा। This is not just for marhumin. Then Prophet ﷺ said, the person, the reader who is reading Subhanallah wa bihamdi 300 times today, Allah subhanahu wa ta'ala will enter 1000 anwarat and the lights in the grave of that person. Allah Ta'ala हम सब छोटा सा अमल है। It's a really small and short thing which we can read Subhanallah wa bihamdi 300 times. और फिर एक अरबी पोएट हुआ है, उस अरबी पोएट ने बड़ा खूबसूरत ये कलाम लिखा है। वो फरमाते हैं, लिखते हैं
लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद। वो बैठे भी हो यार, वो अरबी शायर क्या कहता है? लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खाफल वईद। फरमाया कि ईद ये नहीं है कि नए कपड़े पहन लिए जाएं। This is not Eid to wear new clothes। आप फरमाते हैं बल्कि ईद तो ये है कि बंदा अल्लाह से डर जाए। The meaning of Eid is not to wear new clothes। The meaning of Eid is to have fear of Allah subhanahu wa ta'ala। और थोड़ा और आगे चले जाएं, ईद का मतलब ये है, बल्कि आप आगे सुनेंगे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके पास everyone knows अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके पास कुछ सहाबा गए। अब ये सुनने वाली बात है, we just think that if there is Eid day तो हम बस सेवियां खाएं, एक दूसरे से मिलें, जदोसी निक्के सी बस ईदी लें, बच्चों को ईद दें लें और खाएं पिएं, एक दूसरे गेट टुगेदर करें। दिस इज द पार्ट ऑफ ईद अल्हम्दुलिल्लाह, मगर दिस इज नॉट जस्ट ईद। सिर्फ ये ईद नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन दे वेंट टू सी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु at the day of Eid। They saw that हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला was crying। उन्होंने देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला की आंखों में टीयर्स हैं। कहा ए उमर, आज का दिन तो ईद का है। Today is the day of Eid। Today is the day of happiness। Why are you crying? Why you have tears in your eyes? And now listen the beautiful reply of Hazrat Umar. He said, oh my friends, hadha yawmul Eid wa hadha yawmul wa'id। This is the day of Eid and this is the day of sorrow। मेरे फाके अमर समझ नहीं आती, how it is possible that today is the day of Eid and the day of sorrow? How it is possible? He said, if Allah subhanahu wa ta'ala will accept your rosé, will accept your sadaqat wa khairat which you did in the month of Ramadan, if Allah subhanahu wa ta'ala will accept your salatul tarawih, your a'mal and actions which you did in the month of Ramadan, if he will accept, then this is the day of Eid। And if then things will be rejected, then this is the day of sorrow। क्या आप में से कोई यकीन कर सकता है कि हमारे रोजे कबूल हो गए? Is there any assurance that our rosé and a'mal are accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? What assurity we have nisbat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। हमारे पास assurity सिर्फ ये है कि हम हजूर की उम्मत ही हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, this is the day of Eid and this is the day of sorrow। अल्लाह ताला हम सबको हम सब का ये दिन जो है वो ईद का बना दे, खुशी का बना दे। दिस इज माय दुआ। और आगे चलते हैं मुकाशफतुल कुलूब में। मुकाशफतुल कुलूब इज अ बुक रिटन बाय इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप फरमाते हैं हजरत सैयदना वहब बिन मुनब्बे आपसे रिवायत फरमाते हैं, नरेट करते हैं, फरमाते कि जब इस टाइम बोलन का कोई टाइम नहीं ना होता, मौलवी खा के आसियत खाई होती है, तो ये फिर थोड़ा सा अननेचुरल सा टाइम होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये अननेचुरल टाइम नहीं है, ये नेचुरल टाइम है टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ अल्लाह इंशाअल्लाह। जोर लगते इंशाअल्लाह टेम्पो चाह रहा सामने। तो आज का दिन मुकाशफतुल कुलूब में इमाम गज़ाली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ईद के दिन, अब जब राना साहब इशारा फरमाएंगे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। तो आज के दिन फरमाया जो शैतान है, हज़रत वहब बिन मुनब्बे narrated a narration against shaitan, against devil। He said at the day of Eid, शैतान cries, शैतान रोता है। उसके जो शतूमरे होते हैं, उसके जो फॉलोअर होते हैं, उसकी जो टीम है सारी उसको सर्कल बना लेती है और आकर पूछती है कि तू क्यों रो रहा है भाई? उनका लीडर है, वो कहते हैं भाई आज बॉस क्यों रो रहे हो तुम? वो कहता है मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज अल्लाह ताला ने हजूर की उम्मत की बख्शिश फरमा दी। I am crying because Allah subhanahu wa ta'ala forgives the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। तो साहिबो आज का दिन बड़ा अहम दिन है। और फिर आज आखिरी बात, अगर मुमकिन हो, मुमकिन क्या ये तो वाजिब है, आज जरूर सदका फित्र अदा करें।
जिन दोस्तों ने अदा कर दिया है माशाअल्लाह से ही बड़ी बात है। और अगर किसी ने सदका फितर अदा नहीं किया, नाउ लिसन लास्ट रिवायत, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो बंदा सदका फितर अदा नहीं करता उसका रोजा जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाता है, वो मकबूलियत के मकाम पर नहीं जाता। और अगर अपना रोजा कबूल करवाना है, इफ यू वांट द एक्सेप्टेंस ऑफ योर रोजे, इफ यू वांट acceptance of the month of Ramadan, try to pay sadaqah fitr inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will accept that. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.